Assalamu alaikum and welcome back with the lecture number 9, and today we are going to talk about a complete new dimension, that is basically your quality. But before going that, let me just give you the recap of what we did in lecture number 8. So in lecture number 8 we talked about the stakeholder perspective on operations performance, और हमने कहा था कि stakeholders के अंदर आपका customer होता है, you have your society, you have your environment, you have economic, political, social, technological, ये सारे आपके external factors होते हैं जो आपके operations को क्या कर रहे होते हैं, affect कर रहे होते हैं. Then आपकी जो performance होती है, when we talk about the word performance, तो performance is basically what you are at the moment and how that delta change has occurred. So what we are looking into कि जी आपकी performance किस तरीके से change हुई है. Now performance को measure करने के लिए there are certain parameters. अगर आपको याद होगा in the last lecture we gave different examples of different companies कि जी अगर ये चीज़ चाहिए तो आप किस तरीके से हैं. तो performance में आपके 5 variables थे. Some of them like quality है, आपकी cost है, आपकी delivery है, आपका time है. So these are some of the variables on which we measure the performance. और अगर ये आपके बेहतर हो रहे हैं, it means that your performance is improving. उसके बाद then we talked about कि operations strategy क्या होती है और operations management क्या होती है. Like you have already covered the course of operations management, you very well know कि जी हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था. But operations strategy is basically the road map. It's basically कि जो आप चीज़ management कर रहे हैं वो किस basis पे कर रहे हैं, and these things are determined in operations strategy. It's a rigorous process. आपकी formulation होती है, आप अपने टॉप मैनेजमेंट उसके बाद लोअर मैनेजमेंट इनको इन्वॉल्व करते हैं. आपकी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है जो कि आगे हम चल के पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग आपकी कैसे होती है, कौन कौन से वेरिएबल उसमें होते हैं, कौन सी मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, किस किस्म के डिसीजंस होते हैं. एंड देन योर स्ट्रैटेजी इज़ फॉर्मुलेटेड. एंड वंस द ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, वो जो आपका रोड मैप होता है कि जी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, ये मैं अपने ऑपरेशंस को किन बेसिस पे कैसा देखना चाहता हूँ, दैट इज़ बेसिकली all in black and white that you are developing the operations strategy. और फिर उस strategy को जब आप measure कर रहे होते हैं या उसको आप action में देखते हैं, अब आप उसको manage करते हैं, that is basically your operations management. And then we talked about the 5 P's of operation strategy implementation. ये कौन-कौन से आपके factors हैं जो कि आपने you have to keep in mind when you are actually implementing the operations strategy. अब to be very frank, operation strategy बनाना, yes, it is a difficult thing. It is, you are actually visioning the future कि जी future में हम अपने किस किस्म का हमने road map use करना है, because that is basically what we are looking into, or what we are trying to have a differential in terms of operations of other organizations. लेकिन when we are looking into the formulation of operation strategy, आगे जो एक बड़ा challenge आता है, that is basically the implementation. और implementation के अंदर ही आपकी management हो रही होती है कि जी आप अगर operation strategy अगर आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है, this doesn't mean कि जी that operation strategy is going to give you the true results, क्योंकि until unless उसकी implementation वैसी नहीं होती. So we have to keep in mind that when we are actually developing the operation strategy, तो कौन है वो operation strategy बना रहा है, किन लोगों की involvement ज़रूरी है, and किन लोगों ने उसको implement करना है. Because once you implement operation strategy, then you are going to get the results जो कि आपने envision किए हुए हैं. So that is all about. Now we talk about कि जी अगर आप strategy को देखते हैं तो strategy के अंदर क्या आ जाते हैं, कुछ strategy के substitutes हैं. अब बेसिकली ये है कि जो मेजर जो हम स्ट्रैटेजी के सब्स्टिट्यूट को देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर क्वालिटी. सम विल नॉट इवन नो व्हाट इज़ मेंट बाय ऑपरेशन स्ट्रैटेजी. वेरी ट्रू. अब अगर आप अब के ज़माने में तो नहीं, लेकिन अगर आप शुरू यू टॉक अबाउट 25-30 years बैक, तो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी, तो मोस्ट पीपल माइट नॉट अंडरस्टैंड. और अगर ऑपरेशंस में एक्सीलेंस ला रहे हैं तो दे विल जस्ट टॉक अबाउट वन फैक्टर, दैट इज़ योर quality. Yeah, that is your cost. So over here we are trying to make our operations as much lean as possible कि जितनी आप उसके अंदर efficiency लेके आना चाहते हैं, that is our core objective.
अब ऑपरेशंस को फास्ट आपने करना होता है, ऑपरेशंस के अंदर एफिशिएंसी आपने लानी होती है। ऑपरेशंस को कभी भी ये मत देखें कि अगर आपने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे कॉस्ट का कर्व आपका नीचे ही जा रहा होता है। और यहाँ अगर आप कॉस्ट को कम कर रहे हैं, यू कांट से कि जी हम अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। वी आर री इंजीनियरिंग आवर ऑपरेशंस टू अवॉइड ऑर्गेनाइजेशनल सिलोज। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो जैसे आपके प्रोसीजर्स हैं, जो आपके द वे ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली फंक्शनिंग, हम उसके अंदर क्या लेके आते हैं, री इंजीनियरिंग लेके आते हैं, बिकॉज टाइम्स कीप ऑन चेंजिंग। एंड देन some will have a clearly worked out the thought through articulation of how to reconcile market requirements with operations resource capabilities। वही वाली बात जो हम शुरू से एक डायग्राम दिखाते हैं कि जी एक साइड पे आपकी operations capabilities हैं और एक साइड पे आपकी market की needs हैं। अब market आपसे कुछ कहती है that we need a product which is this much cheap, but आपके पास वो resources नहीं है या आपके पास वो capacity नहीं है that you can actually pull down the cost, so you need to look into that factor. So that doesn't mean that whatever market is asking, so you can actually give that to you. Yes, we try. इसलिए हम कहते हैं need assessment करें. You have to see कि जी आपकी market के अंदर demand क्या है आपके product की, लोग आपके product को कैसा perceive करते हैं, but it's not necessary कि आप वो सारी चीज़ें दे सकें, क्योंकि customer can ask anything, लेकिन आपने अपनी भी कैपेबिलिटी देखनी होती है। फॉर एग्जांपल यू कांट आस्क एप्पल कि जो एंड्रॉयड के फंक्शन है वो सारे आपके iOS के अंदर ले आए। इसीलिए जब भी एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा होता है तो वो ऐसी चीज़ें लेके आ रहा होता है जो कि मे बी दे कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर एंड्रॉयड, लेकिन दे आर नॉट एंड्रॉयड। लेकिन जो एंड्रॉयड की कैपेबिलिटीज़ हैं वो iOS में नहीं आ सकती। बट people are always asking and people might switch from Samsung से वो स्विच हो जाते हैं उसके अंदर एप्पल के अंदर, या एप्पल से वो स्विच हो जाते हैं सैमसंग के अंदर, क्योंकि जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं उनको दूसरे प्रोडक्ट में मिल रहा होता है, और यही आपका मार्केटिंग गिमिक होता है। नाउ द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आस्क or we are going to cover today is that how does total quality management fit into operations strategy। उसके बाद सेकंड है कि हाउ डज लीन ऑपरेशंस फिट इनटू ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। थर्ड आपका आ जाता है हाउ डज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फिट इनटू ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। फोर्थ है आपका हाउ डज सिक्स सिग्मा फिट्स इनटू ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, एंड व्हाट प्लेस डू दीज न्यू अप्रोचेस हैव इन द ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम जो शुरू मैंने एक आपको स्टेटमेंट दी थी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, एंड बेसिकली वो ऑपरेशंस को बेहतर करने के लिए वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं। दे आर आइदर यूजिंग द लीन ऑपरेशंस, दे आर आइदर यूजिंग द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, दे आर आइदर यूजिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और दे आर यूजिंग सिक्स सिग्मा, एंड people may call it that these are the substitutes for operation strategy. And in the end we are going to talk about that how these new approaches have in fit in the operation strategy, but they may be called as the substitutes, but later on you will discover that they are not exactly the substitutes for operation strategy। जहाँ पे आप TQM लगा रहे हैं मे बी वहाँ पे लीन ना लगता हो, या यहाँ पे आप लीन लगा रहे हैं वहाँ पे आपका सिक्स सिग्मा ना लगता हो। इट डिपेंड्स कि भी आपकी ऑपरेशंस में किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना है। नाउ क्यों हमें ऐसा रिस्पांस मिलता है कि जी अगर आपने ऑपरेशंस में करना तो आप ये टूल्स लगा दें तो एक्चुअली ऑपरेशंस एक्सीलेंस एंड दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स फॉर ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी। उसके अंदर ये होता है कि these approaches are easily understood and are relatively simple to tackle the complexities of modern operations। इस वजह से हम ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को कहते हैं कि जी लीन हम ले आए तो हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर बड़ी वो जैसे कहते हैं वी हैव मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन। अगर आप कहते हैं कि जी हमने सिक्स सिग्मा कर दिया तो हमारे ऑपरेशंस बेहतर हो गए। सो दिस इज़ एन प्री अजम्पशन कि जी these things are substitutes for operations strategy, and we have seen like GE को देख लें, Motorola को देख लें, उसके बाद Unilever को देख लें, like when these organizations actually applied these concepts in their organizations, that has actually given some remarkable results, and it actually improved the productivity and efficiency of the organization. But can we qualify it कि these are the substitutes for operation strategy? That is yet to be answered, and you will be able to understand by the end of the lecture.
So they sound as if they are new or by implication therefore must be better than what went before. ठीक है, कि भी हमने आ रहा है कि जी जब हमने सिक्स सिग्मा को लेके आए या जब हमने वेस्ट को कम करना शुरू किया तो इट एक्चुअली इम्प्रूव्ड द ऑपरेशन एंड वी हैव सीन टैंजिबल वो जिसे कहते हैं रिजल्ट्स वेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है इसके अंदर कि जी वंस दे अप्लाइड दीज क्वालिटी प्रिंसिपल्स, वंस दे हैव अप्लाइड लीन मैनेजमेंट, वंस दे हैव अप्लाइड सिक्स सिग्मा, तो इट एक्चुअली गेव देम गुड रिजल्ट्स. ठीक है, उसके बाद दे हैव बीन सोल्ड बाय आइडिया बाय द कंसल्टेंट or that it's worth trying, it is something new because other things have failed to bring improvements. और एक इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि operations में once you have given chance to these सिक्स सिग्मा या ये जो मैंने 4-5 टूल्स आपको बताए हैं, अगर आपने इनको अप्लाई किया so it has actually given you a better results. तो आपके जो कंसल्टेंट्स होते हैं या हम जो थर्ड पार्टी लोगों को बुलाते हैं, हम कहते हैं जी please help us, we are not getting results in our organization. So once you call them, they actually give you some kind of कि जी आप काइजन की टेक्निक लगा लें, आप कैनबन लगा लें, आप सिक्स सिग्मा लगा लें, आप लीन को देखें, टोयोटा ने लगाया तो ये, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करें, वी फील के भी एंड दे हैव डन सम गुड रिजल्ट्स. तो वी फील के भी ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप ये 4 टूल्स लगा लेते हैं तो जी इट इज़ रिमार्केबल एंड दे हैव गिवन यू गुड रिजल्ट्स. अब ये जो मैंने आपको बताया कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग इन द आई हैव केप्ट इट इन द लास्ट लेक्चर्स, बट व्हाट वी आर सीइंग इज कि अगर आप इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें तो आपका दिया हुआ है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसोर्सेज परस्पेक्टिव, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट्स परस्पेक्टिव. ये दोनों हमेशा रहेंगे आपके ऑपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर और इन दोनों को यू कीप इन देम इन माइंड एंड देन यू एक्चुअली फॉर्म योर ऑपरेशन स्ट्रेटजी. लेकिन जहाँ पे अब आपने डिसीजंस लेनी है, अब आपने डिसीजन ये क्या करनी है कि जी हमने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ योर ऑपरेशंस एंड व्हेन यू आर इम्प्रूविंग योर ऑपरेशंस. तो ये 4 चीज़ें वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल कि जनाब आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके बाद आपका सिक्स सिग्मा, ठीक है, उसके बाद आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड देन कम्स योर लीन ऑपरेशंस वेयर दे एक्चुअली फिट इन और कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है. यू कांट अप्लाई ऑल फोर ऑफ दीज साइमल्टेनियसली. यू कांट अप्लाई जहाँ पे TQM की ज़रूरत है, आप लीन को नहीं करके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. तो वहाँ पे अब आपकी क्या आ जाती है, आपके डिसीजन मेकिंग एरिया आ जाते हैं कि व्हाट आई हैव टू अप्लाई व्हेन. ठीक है, नाउ जो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली अभी सॉल्यूशंस अभी जो मैं आपको बता रहा था, जो हर ऑर्गेनाइजेशन ने वन पॉइंट ऑफ टाइम लगाया है, आप अपनी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लो तो वहाँ पे हमने ये 4 चीज़ें हमेशा लगाई हैं एंड दे थॉट कि जी दीज वर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द ऑपरेशंस. और यही अगर आप क्वेश्चंस पूछो इज दिस योर ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी एंड यू माइट गेट अ मिक्स्ड रिव्यू, क्योंकि सम पीपल वुड से हाँ हमने ऑपरेशन स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर दी थी. नो, बट these are some of the commonly tools which people or which most of the people say they act like a substitute for operations strategy. The first thing before going for TQM I want to discuss about quality. Most of you might have heard about this word, but jab word quality comes to a mind, ठीक है, so what exactly कॉन्सेप्ट्स या चीज़ें आपके जहन में आने लग पड़ती हैं जब वर्ड क्वालिटी आता है. एनी आइडिया, एनी मोर आइडियाज कि द वर्ड क्वालिटी कम्स एंड एकदम हमारे जहन में कुछ आएगा. अगर मैं कहता हूँ जी क्वालिटी तो इसका मतलब है मे बी इट विल बी प्राइसी, क्योंकि एक हमारी ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसकी प्राइस भी हाई होगी. अ वेरी कॉमन एग्जांपल वुड बी यू गो टू अ फ्रूट वेंडर एंड यू से कि जी ये क्या है, ये दीज एप्पल्स आर फॉर 100 रुपीज़, दीज एप्पल्स आर फॉर 200. वाई? जी इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, दे आर मच मोर स्वीटर. सो हमने प्राइस को क्वालिटी के साथ वो कनेक्ट किया हुआ है कि जी जिस चीज़ की प्राइस हायर है तो वी अज्यूम कि जी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. हैविंग food at Avari, having food at PC, or having food at Serena as compared to having food at Bundu Khan. Now these are two different. लेकिन हमारी assumption है कि वहाँ पे environment अच्छा होगा, बड़ा टेबल अच्छा सजा होगा, खाना आपको अच्छा मिलेगा, so quality food मिलेगा. ठीक है. You compare Ferrari, you compare Lamborghini, you compare Dodge. आप एक Toyota या Honda के साथ उसको compare करो तो you feel कि भी this particular product has given more वो जिसे कहते हैं
क्वालिटी एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी XLI GLI करोला। कहाँ पे करोला, कहाँ पे फरारी, लेकिन फरारी की प्राइस देखें और करोला की प्राइस देखें। देन कम्स परफॉर्मेंस, क्वालिटी में एक और आ जाती है परफॉर्मेंस। अगर मैं एक चीप, फॉर एग्जांपल इफ आई बाय क्यू मोबाइल, ठीक है, एंड आई बाय एप्पल, तो मेरी ये अजम्पशन है कि भी एप्पल की परफॉर्मेंस इज बी मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन, कौन सा, क्यू मोबाइल, ठीक है, क्योंकि क्यू मोबाइल की प्राइस कम है। क्यू मोबाइल इज चाइनीज़ कंपनी। फिर आपको मे बी क्वालिटी हो तो हम कह देते हैं जापानीज़ प्रोडक्ट्स आर मच मोर, इलेक्ट्रॉनिक्स आर मच मोर क्वालिटी उनकी अच्छी एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि जापान ने अपना नाम क्वालिटी के अंदर रखा। सो जब हम एक वर्ड जब क्वालिटी कहते हैं कि दिस इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट, तो एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन अजम्पशन, एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन डिफरेंशियल कि जी हाउ ही और शी इज़ टेकिंग द वर्ड क्वालिटी। सो क्वालिटी के जब आप देखते हैं कि जी एवरी पर्सन हैज इट्स ओन अजम्पशन, एवरी पर्सन हैज इट्स ओन परसेप्शन अबाउट क्वालिटी। लोकेशन, अगर एक फूड रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन सम पॉश एरिया, यू फील कि भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और अगर वही फूड रेस्टोरेंट, सेम रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन लाइक द सेम रेस्टोरेंट इज इन पिंडी एंड द सेम रेस्टोरेंट इज इन इस्लामाबाद, सेम रेस्टोरेंट इज इन लाहौर, द सेम रेस्टोरेंट इज इन गुजरांवाला, तो आपको लाहौर वाला ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने क्वालिटी को एसोसिएट किया हुआ है लोकेशन के साथ। सो यू वुड सी दे कि हम क्वालिटी को कि कोई एक डायमेंशन नहीं ले सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग क्वालिटी। कुछ कॉस्ट में देख लेंगे, कुछ लोकेशन में देख लेंगे, कुछ उसकी प्राइस में देख लेंगे, कुछ उसकी ड्यूरेबिलिटी में देख लेंगे, कुछ उसकी अवेलेबिलिटी में देख लेंगे, ठीक है। नाउ ये जो विलियम कूपर प्रॉक्टर एंड गैम्बल के था, व्हाट ही सेज, द फर्स्ट जॉब वी हैव इज टू टर्न आउट क्वालिटी मर्चेंडाइज दैट कंज्यूमर्स विल बाय एंड कीप ऑन बाइंग. If we produce it efficiently and economically, we will earn a profit in which you will share. और यहाँ पे जो word you है, that is basically the customers, that is basically the stakeholders, जो हमने पीछे stakeholder perspective पढ़ा था. If everyone is getting a quality product, then automatically उसकी sales भी क्या होंगी, sustainable होंगी. Now अभी जो मैं like a minute ago I was talking about कि quality को कैसे perceive किया जाता है. So most people are taking quality कि जी quality क्या है, it is perfection. कि जी मेरा product क्या है, it is zero defect, इसके अंदर कोई problem नहीं है. Quality is basically fast delivery. Domino's says कि जी I deliver the pizza within 30 minutes और अगर 31 minute होते हैं तो आपको pizza free हो जाएगा. That is quality, how they look. Fast delivery. Then comes providing a good यूजेबल प्रोडक्ट के ऐसा गुड ऐसा आपका प्रोडक्ट दिया जाए जो कि रीयूज हो सके, ठीक है. देन प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी हो. आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप हमेशा एक सैलड ऑर्डर करते हैं या एक आपने चिकन का कोई डिश ऑर्डर की और उसके अंदर हमेशा वैसा ही टेस्ट आता है. सो दैट इज बेसिकली कंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्ट. दिस इज हाउ यू से कि नहीं यार, इट्स अ वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट. जब भी आओ ऐसा ही साफ सुथरा, इसी किस्म का एनवायरनमेंट, इसी किस्म का आपको प्रोडक्ट दिया जाता है. उसके बाद क्वालिटी इज बेसिकली कि मैंने अपनी वेस्टेज को बिल्कुल एलिमिनेट किया हुआ है, मैंने अपने वेस्टेज को बिल्कुल कम किया हुआ है. उसके बाद एक इफ़ यू गेट अ चांस इन गोइंग टू पाकिस्तान टबैको कंपनी PTC नहीं लॉरेंसपुर में अगर आपका चांस हो, इट्स नियर अटक से आगे आप जाएं, GIK वाली साइड पे अगर आप जाएं तो यू विल फाइंड द फैक्ट्री. और वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर आप चीज़ को पहली दफ़ा ही सही कर लें तो आपको सेकंड या थर्ड टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और जितनी ज़्यादा दफ़ा आप रिपीट करेंगे आपका वेस्टेज ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. सो क्या होता है, डूइंग इट राइट एट द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ बेसिकली हाउ सम पीपल डिफाइन क्वालिटी. उसके बाद डिलाइटिंग और प्लीजिंग कस्टमर्स, दिस इज़ माई क्वालिटी. मैकडोनल्ड्स कहता है स्माइल डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा स्माइल करना है. लिटरली यू गो टू अ सर्विस, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले गुस्से में आपको कहे जी क्या प्रॉब्लम है आपको,
you will never go to that doctor again. You would say कि this person doesn't know how to respect a patient. ठीक है, you come to a class और जनाब प्रोफेसर आके आपको जनाब खड़ा कर दे और जनाब आपकी बेइज्जती करे, that is not quality. ठीक है, you have to be greeting, you have to be delightful to your customer. और अगर कस्टमर मेरा खुश है, अगर कस्टमर मेरा if he is pleased, then it means that my product is good, he is willing to. Why? आपके दो स्टोर्स होते हैं, एक स्टोर पे बहुत सारा रश होता है, दूसरे पे नहीं, हालांकि मर्चेंडाइज सेम है, एक ही लोकेशन है, लेकिन मे बी वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा वो जिसे कहते हैं आपको अच्छे तरीके से डील करता है, आपको जल्दी आपको सर्विस दे देता है. सो क्वालिटी वहाँ पे डिफरेंट आ गई. ठीक है, मैं एक ही पानी की बॉटल, एक मेरे साथ यहाँ पे एक और मौसूफ बैठे हुए, एक वो बैठे हुए, एक मैं बैठा हूँ, लेकिन कस्टमर ज़्यादा मेरी तरफ आते हैं या उनकी तरफ आ जाते हैं. सो वाई, अब हम क्वालिटी किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आई एम एक्चुअली नॉट ग्रीटिंग माई कस्टमर्स, आई एम नॉट गिविंग देम वैल्यू. सो सर्विसेज के अंदर हमने सर्विस का भी पूरा एक मॉड्यूल पढ़ा था कि सर्विस के अंदर आपको क्या होता है कि कस्टमर आपका प्लीज हो. दिस इज बेसिकली क्वालिटी. आजकल वो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि जी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वालिटी इन सर्विस और इवन इन प्रोडक्ट, लोग प्रोडक्ट तो बाद में लेंगे. आप जाते हैं शोरूम्स के अंदर, आप कहते हैं जी मैंने ऑडी कार लेनी है, और ऑडी के अंदर आप ले जाते हो और सबसे पहला जो फर्स्ट इंटरफेस है दैट इज योर सेल्समैन. सेल्समैन कहता है सर आप चप्पलें पहन के आए हैं, आप वाकई ऑडी अफोर्ड कर सकते हैं. हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? You would see कि जी customer is not pleased by your service. Customer is not pleased कि आपने जो उसको बातें इस तरह की हैं. तो कस्टमर क्या कहेगा जी सॉरी यार उस शोरूम में नहीं जाना, उस होटल में नहीं जाना, इंतहाई they do not treat their customer. So you have to please the customer. ऑडी तो बाद में आनी है. ठीक है, ऑडी का एक्सपीरियंस तो बाद में आना है, लेकिन उससे पहले आपके सेल्समैन ने आपकी बेइज्जती कर दी, यानी ही हैज़ एक्चुअली हिट इट योर इकोनॉमिक क्लास. नंबर 2 आपका आ जाता है कि जी नाउ डेज वी इन्वेस्ट मोर इन द प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दीज पीपल, because these people are the first interfaces before the product is used. Sometimes आप जाते हैं and the waiter or the person who is taking your order, he is highly helpful, he is very gentleman, आपको अच्छे तरीके से आपको बताता है, आपको गाइड करता है. There are a number of people who don't know much about French dishes, जहाँ उनको तो वो आपको गाइड कर रहा था. दूसरा एक वेटर आता है, वो कहता है जी सर यही है, आपने जो बताना है मैं ऑर्डर कर देता हूँ, लिखा हुआ है सारा कुछ, वो आपको हेल्प नहीं करता. सो यू आर नॉट प्लीज्ड विद दैट. फूड अभी नहीं आपने खाया, लेकिन सिर्फ बाय द रिएक्शन और द वे दैट वेटर इज डीलिंग विद यू, यू जस्ट you are off, and at times people leave the restaurant just because they are treated badly. ठीक है, फूड की भी बारी आती नहीं, प्रोडक्ट की नहीं बारी आई, it's just the service. So क्वालिटी में इट्स नॉट हमेशा उसको प्रोडक्ट के परस्पेक्टिव से नहीं आपने सोचना, आपने उसके अंदर एक हम कहते हैं ना देयर इज अ बंडल, प्रोडक्ट प्लस सर्विस की बंडलिंग हुई होती है, तो उसके अंदर आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. उसके बाद जहाँ पे हमने कस्टमर को डिलाइट कर दिया, प्लीज़ कर दिया, देन वी टॉक अबाउट टोटल कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन, कि आपका कस्टमर क्या हो, वो हमेशा सेटिस्फाइड हो. वाई आई विल बाय योर प्रोडक्ट अगेन इफ आई एम सेटिस्फाइड विद योर सर्विस. यूएस में बहुत ज़्यादा हुआ, यूके में भी ऐसा होता है. यू गो टू अ शॉप एंड यू जस्ट टेल देम कि जी मैंने 1 महीना आई यूज़ दिस बट ये मशीन ख़राब हो गई है. एंड बिलीव मी, वॉलमार्ट पीपल इन यूएस दे ट्रस्ट यू सो मच कि आपने वो चीज़ इस्तेमाल की, वो कहेंगे अच्छा ये रख दें, जाके आप अपनी नई ले लें, रिप्लेस कर लें. बिलीव मी, पीपल आर नॉट बैड. वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी चीज़ इस्तेमाल की एंड देन दे जस्ट स्टार्ट यूजिंग द उसको वापस किया एंड देन दे गेट अ न्यू वन. नो, पीपल टेल ट्रूथ. और मैंने जब वॉलमार्ट के स्टाफ से पूछा, मैं कहा हाउ कम यू नो कि जी इस बंदे ने 2 महीने इस्तेमाल किया, इसने रसीद भी संभाली हुई थी और उसने कहा जी ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड, द प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्किंग वेल, और आपने उसको चेंज कर दिया. उन्होंने कहा जी वी ट्रस्ट आवर कस्टमर्स. सो कितने को मैंने कहा जी कितने केसेस आ रहे हैं, महीने में 4 या 5 आते हैं, और वॉलमार्ट की डेली वॉल्यूम सेल्स इतनी ज़्यादा है, पीपल आर सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई दे गो टू वॉलमार्ट बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ चीप. और वो जिस तरीके से कस्टमर सर्विस है. एक और आपको बड़ा मज़ेदार बताऊँगा कि वॉलमार्ट ने अपने जो कैश काउंटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने ओल्ड लोगों को बैठाया हुआ है, पीपल हु आर रिटायर्ड, हु नीड मनी, हु मे बी हैंडीकैप्ड, दे कीप दे हैव प्लेस देम. आप बदतमीजी नहीं करते, आप क्या करते हैं, यू आर पेशेंटली वेटिंग, क्योंकि आप वो बूढ़ा आदमी है, एंड यू रिस्पेक्ट देम, एंड दिस इज़ हाउ दे, दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, और ये भी एक क्वालिटी की डायमेंशन में आता है कि लुक, वॉलमार्ट इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉफिट ओरिएंटिंग MNC, इट इज़ एक्चुअली
केयर फॉर पीपल, दैट्स वाई उन्होंने अपने ये जो है आपकी एक तो होती है ना ट्रैकीज, उसके बाद ये जो डिसेबल्ड लोगों के लिए उन्होंने वो ऑटोमेटिक वो रखी होती हैं, वो गाड़ियाँ रखी होती हैं जहाँ पे दे कैन एक्चुअली शॉप अराउंड. Plazas are really big. The salesmen are very helpful. There are specific training modules. अब उसके बिलमुकाबल आप देख लें कि उस तरीके का भी have these cash and carries are very small. मेट्रो आ गया है यहाँ आपका इस्लामाबाद में नहीं, बहरिया टाउन के अंदर वो है ग्रीन वैली है. उसकी रिसीट के अंदर देखें कस्टमर सर्विस इज़ गुड, दे आर वर्किंग वेल, बट क्वालिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जनाब आप जाते हैं, आप उन्हें रिसीट दिखाते हैं, दे विल चेंज द प्रोडक्ट, बट इफ़ यू आर बाइंग इट ऑन द क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसके ऊपर वो कहते हैं हम 2% पता नहीं आपकी डिडक्शन करेंगे. नाउ दैट इज़ समथिंग विच डोंट हैपन इन द वेस्ट. ठीक है, सो देयरफॉर आपका जो कस्टमर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपनी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं. उसके बाद क्वालिटी जब हम ऑपरेशंस के अंदर देखते हैं कि जी क्वालिटी क्या है, तो वो कहते हैं जी कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़, जो कि हम कहते हैं जी आपने जो चीज़ एक लिखी हुई है अगर आप उसको कंप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट. मैकडॉनल्ड्स में आप चले जाएं, अगर आप मैकडॉनल्ड्स में इफ़ यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, इफ़ यू हैव वर्कड, पाकिस्तान में तो नहीं हमने काम किया होगा, लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू हैव स्टेड अब्रॉड, तो आप सुबह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, शाम को आप में भी मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हो. चाहे मैं वो चिप्स बनाऊं, चाहे मेरा कुलीग बनाए, चाहे सुबह आकर डेविड बनाए, एडवर्ड बनाए, कोई ये नहीं कह सकता कि जी ये डॉक्टर अनिल ने चिप्स बनाए इसलिए बहुत टेस्टी हैं या बहुत ही इनका टेस्ट बुरा है. वाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़. हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि इतने टाइम पे ये आपने करना, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप हैं, और अगर हम उसको सारे को फॉलो करें ऑटोमेटिकली आपके चिप्स का टेस्ट सेम होगा थ्रू आउट 24 आवर्स अ डे, 365 डेज अ ईयर, 30 डेज अ मंथ. आपका फ्राइज या आपके बर्गर का टेस्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि हाउ दे आर इंश्योरिंग क्वालिटी बिकॉज दे हैव मेड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, एंड इफ यू फॉलो द प्रोसीजर्स यू गेट दैट. Then comes your quality number 2, and here we are saying that quality की जो transcendent definition है, that is basically उसके अंदर क्या होनी चाहिए, excellence होनी चाहिए. Number 2, क्वालिटी की जो प्रोडक्ट बेस्ड डेफिनेशन है, जब हम उसको प्रोडक्ट में देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. कि प्रोडक्ट में जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे उतने ज़्यादा. पहला सुजुकी एफएक्स को देख लें नाउ वर्सेस आप दूसरी देख लें ऑटोमेटिक विंडोज़, ये वो तो क्या है, क्वालिटी को इन्हांस कर रहे हैं बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. उसके बाद यूज़र बेस्ड डेफिनेशन क्या है, इट इज़ फिटनेस फॉर इंटेंडेड यूज़, कि जी आप जिस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए वो परफेक्टली फिट है. Then comes your value based definition. Value based definition के अंदर हम क्या कहते हैं, we talk about कि जी आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी प्राइस के साथ लोग उसको मेजर कर रहे होते हैं. कि जी प्राइस अगर एक्सपेंसिव है तो ऑब्वियसली भी शो कि जी आपकी क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है. अगर अब यही एक इफ़ यू आर हैविंग अ बर्गर फॉर 12 रुपीज़, वो याद होगा ये जो छोटे छोटे आपके होते हैं वो 12 रुपीज़ का भी, वो भी आई थिंक 50 के 80 रुपीज़ का है, वर्सेस अ मैकडॉनल्ड बर्गर विच इज़ 200, टैक्सेस भी पड़ गए, सारा कुछ हो गया. इन दोनों बर्गर्स को कर लें तो यू फील कि भी उसकी अगर प्राइस हम ज़्यादा दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी. देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड डेफिनेशन, और वो भी जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस के अंदर हम क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हैं. यू आर एक्चुअली कन्फॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड यू आर कन्फॉर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशंस. सो जब हम क्वालिटी को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, ब्रॉडली में हम क्या कहते हैं, मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस नाउ एंड इन द फ्यूचर. मीटिंग एक्सपेक्टेशंस इज़ रियली गुड. कस्टमर कहता है जी ये 4 एट्रीब्यूट्स हों तो मैं प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ. आप 4 की बजाय आप 6 और डाल देते हैं, which is now 11 attributes to customer is कि आपने expectations को क्या कर दिया, exceed कर दिया. So that is much better. उसके बाद आप कहते हैं specifically जब हम quality की dimensions को define करते हैं, that is basically number 1. क्वालिटी की जो dimension है is your design. ठीक है, डिज़ाइन में क्या होता है, it is determined before the product is produced. जब हम प्रोडक्ट की कंसेप्शन कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर एक्चुअली डिफाइनिंग द प्रोडक्ट कि जी प्रोडक्ट ऐसा होगा, प्रोडक्ट ये होगा, तो हम उसकी एक डिज़ाइन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप डिज़ाइन. तो प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन होता है दैट एक्चुअली इंश्योर्स द क्वालिटी. आप कार्स के अंदर देखते होंगे, कार्स के अंदर व्हाट वी डू इज़ दैट हम कहते हैं जी कस्टमर ने कहा हुआ कि जी कार मुझे स्पीड वाली चाहिए,
आप डिज़ाइन उसका ऐसा कर देते हैं दैट इट एक्चुअली रन्स फास्ट। होंडा सिविक अगर आपको याद हो शुरू में जो थी, दे वर एक्चुअली इस शेप उसकी बहुत इस तरीके की, दैट वाज बेसिकली मिनिमाइजिंग द एयर फ्रिक्शन। ये जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स कार हैं वो नीचे को बैठी होती हैं और आगे को इनकी एलिवेशन बहुत आगे शार्प होती है, दैट इज़ बेसिकली टू मिनिमाइज द एयर फ्रिक्शन। सो दिस इज़ बेसिकली द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा हो कि भी इट एक्चुअली प्रॉम्प्ट्स द कस्टमर के वो देखे कि भी मैंने ये लेना है। आईफोन अगर आपको याद होगा तो आईफोन जो पहला आया था इट लुक्ड रियल बिग, रियल नॉट दैट गुड। उसके बाद फिर आया i2 आया, फिर i3 आया, और उसके बाद i4 आपको याद होगा उसके अंदर आया था, इट वाज हैवी, इट वाज बिगर। उसके बाद i5 आया, साइज उन्होंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा पतला, और i6 अब आया स्लिम। ठीक है, i6 इज़ अ ब्यूटी। लेकिन अब अगर i7 को आप देख लें उसने स्क्रीन को बिल्कुल ही छोटा कर दिया है, जो विच इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड आई बिलीव नेक्स्ट ईयर। सो अभी तो 6s वगैरह आएंगे, लेकिन जो 7 है दैट इज़ हैज़ रियली गुड फीचर। उसका डिज़ाइन उन्होंने बहुत ही स्लीक बनाया है। ठीक है, सो एप्पल क्या करता है अपनी क्वालिटी को डिज़ाइन के साथ इन्हांस करता है। देन सेकेंड कम्स योर सेकेंड डायमेंशन आपकी आ जाती है कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट टू मीट द स्पेसिफिकेशंस कि जो मैंने स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं वो सारी मेरे प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। उसके बाद एबिलिटीज़ में आप क्या देखते हो कि प्रोडक्ट के अंदर 3 एबिलिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल हो, नंबर 2 प्रोडक्ट रिलायबल हो, और नंबर 3 प्रोडक्ट की मेंटेनेबिलिटी हो। अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। और आपकी जो फील्ड सर्विस हो, प्रॉम्प्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए। आपकी क्वालिटी की ये डायमेंशन है कि जी आपने कहा हुआ है कि जी येस यू बाय द कार, और आप हाँ मैं डेल की एग्जांपल लेट मी जस्ट गिव यू। डेल कंप्यूटर्स अगर आप लेते हैं एंड डेल अगर ख़राब हो जाए तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जी हाँ आप डेल वालों को फ़ोन करें, दे से ओके आप कहते हैं जी माई कंप्यूटर इज़ प्रॉब्लम कर रहा है, एंड व्हाट दे विल डू इज़ वो कहेंगे जी हम कोरियर को भेजेंगे, वी विल सेंड यू द बॉक्स। आप बॉक्स को के अंदर अपना लैपटॉप डाल दें एंड देन टेल द कोरियर के लैपटॉप ले जाए, वो कोरियर लैपटॉप ले जाएगा, योर लैपटॉप विल बी फिक्स्ड, यू विल गेट अ कॉल और an email कि आपका लैपटॉप आ गया, अब फिक्स हो गया, एंड दे विल सेंड। यानी आपको स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही वो डब्बा भेज देते हैं, आप कंप्यूटर को बंद करें उनको भेज दें, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ फिक्स्ड, हैसल फ्री। पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर ख़राब होता है एंड बिलीव मी यू फील लाइक कि जी मेरी दुनिया आधी ख़त्म हो गई है, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट पीपल, यू जस्ट गो टू, हर बंदा अपनी अपनी प्राइस कोटेशंस डाल रहा है, एवरी पर्सन इज़ गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, एंड अगर आप पैसे खर्च भी कर देते हैं इट इज़ नॉट फिक्स्ड। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, आई एम नॉट, बट दैट हैज़ बीन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इन US इट वॉज टोटली हैसल फ्री, कभी कोई इशू हुआ ही नहीं। यू कांट से कभी अच्छा मैं वो कहेंगे जी हमने हार्ड डिस्क नहीं डाली है, हमने बिल डाल दिया। अगर हार्ड डिस्क में आप ये नहीं कहेंगे जी चाइना की डाली है, जापान की डाली है, चेक रिपब्लिक की डाली, कौन सी आपने हार्ड डिस्क डाली, बिकॉज यू ट्रस्ट देम व्हाटएवर दे आर डूइंग। सो आपकी प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, आपको ये ना फिक्र हो कार अगर आपकी US में लग गई है, मैं US का डोंट थिंक दैट आई एम बायस्ड, बट आई एम जस्ट गिविंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आपकी कनाडा के अंदर या वेस्ट के अंदर, चलो द बेटर वर्ड इज़ द वेस्ट के अंदर आपकी गाड़ी वाकई लग जाती है, सो द इंश्योरेंस कंपनी डजंट क्रिएट एनी बॉटलनेक्स, या और आपकी गाड़ी इस काबिल नहीं है तो आपको इंश्योरेंस के पैसे दे देंगे या आपकी गाड़ी रिप्लेस कर देंगे। अल्लाह ना करे इफ इट हैपन्स इन पाकिस्तान, दे जस्ट insurance companies are not there to provide you the true service, they are just there to rip you off। they वो कहेंगे 60-40 आपका कोपे था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अभी इंस्पेक्टर आएगा, फिर ये देखेगा, फिर वो करेगा, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट प्रॉम्प्टनेस। कॉम्पिटेंस होनी चाहिए आपकी फील्ड सर्विस के अंदर, और आपकी फील्ड सर्विस के अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी अगर होगी things work out, if there are no integrity then things doesn't work out। अब जनाब क्वालिटी गुरुज ऐसे होते हैं कि स्टार्ट ये सारा काम होता है जापान से। When it moves to Japan, Japanese were the people who says कि we get maximum out of minimum, ठीक है, लीन में है वो। अब ये फिलॉसफी वही है कि जी टोयोटा, होंडा is the name actually name of the guy, और होंडा ने क्या किया, होंडा actually went to different parts of the world and he saw कि लोग चाहते क्या हैं, और whatever people wanted he actually made it, ठीक है।
एंड टोयोटा ने जैसा टोयोटा का जो कंपेटिटर अमेरिका के अंदर बना, दैट वाज GM, जनरल मोटर्स, द बिग जायंट, एंड अमेरिकन्स एक्चुअली स्टार्टेड बाइंग टोयोटा. दे स्टार्टेड. अब एक जापानीज कंपनी उठ के MNC और जाती है अमेरिका, एंड दे जस्ट completely wipe out the market for the American cars, which are very luxury, which are very heavy, which are very expensive. जापानीज ने कहा जी हम आपको चीज़ वही देते हैं टोयोटा में जो आपको एक अमेरिकन कार के अंदर मिल रहा है. ऑब्वियसली कॉस्ट कम थी लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी थी, एंड दे एक्सेप्टेड. टोयोटा ने अपनी वहाँ पे मार्केट क्रिएट कर ली. नाउ जब ये व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आया कॉन्सेप्ट वहाँ से, एंड these people, these three guys, one is your Edward Deming, second one is your Juran, third one is your Crosby. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जापान में और इन्होंने जापानीज प्रोसेसेस को स्टडी करना शुरू किया. उन्होंने कहा भी हाउ कम people, Japanese people got so much in terms of quality, इन्होंने खुद स्टडी किया and they started giving these quality notions. और ये अमेरिकन्स थे और इन्होंने अमेरिकन वो फिलॉसफी के अंदर क्वालिटी ऑपरेशंस के अंदर क्वालिटी का वर्ड लेके आए. अब किया क्या, वी विल स्टार्ट ऑफ बाय वन. डेमिंग, जो एडवर्ड डेमिंग है, इसने इसकी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ बेसिकली द 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. उसके बाद उसने जो SPCs, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल्स की जो टेक्निक्स थी, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, इस पे उसने फोकस किया. और उसने कहा जी इम्प्रूवमेंट क्या होती है, दैट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस. आप इम्प्रूवमेंट क्या करते रहते हैं, कभी ये नहीं कह सकते कि जी मैंने अपने प्रोडक्ट को 100% अचीव कर लिया, अब इसके अंदर देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. आई डोंट नो इफ़ आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स, यहाँ किसी और क्लासरूम में भी मैंने कोई लेक्चर असाइनमेंट दिया. हमें मी एंड माई कोलीग वी गॉट अ कंसल्टेंसी, और हमने एक स्टोर में, एक डिपार्टमेंटल स्टोर की हमें कंसल्टेंसी मिली, एंड वी वर सपोज टू सी कि जी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या लेके आ सकते हैं. वी लुक्ड एट द प्रोसीजर्स, जो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे कि माल कैसे आता है, किस तरह कस्टमर डीलिंग होती है. एंड बिलीव मी वी वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 20 days. हमें वो सारी चीज़ें परफेक्ट लगी. डेमिंग कहता है जी इट्स अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. हमें लगा नहीं कि भी फर्स्ट इंस्टेंस में हमें लगा कि जी द स्टोर इज़ डूइंग ब्रिलियंट जॉब, कस्टमर्स आर हैप्पी, प्रॉम्प्ट हैं सर्विस में, सारा कुछ है, एंड दे हैव डन, दे आर डूइंग समथिंग कि अब हम और क्या एडिशनल बताएं. लीन, ये वो सब कुछ हो रहा था जैसे एक आइडियल एक बिजनेस को करना चाहिए. बट ऑब्वियसली किताबें हमने भी पढ़ी हुई थी, हमने कभी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अब और इम्प्रूवमेंट क्या लेके आए. और हमने जनाब उनकी वो जो था सेल्स टीम्स थी, हमने उनको बुलाया एंड वी गेव अ वेरी नाइस स्पीच अबाउट कि जी कस्टमर सर्विस इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हो सकता है, और जो भी बेसिक जो जिस तरीके से कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती है वो हमने सारी चीज़ें बताई. एंड व्हेन वी आस्क्ड, उन्होंने कहा जी हम ये सारी काम कर रहे हैं. देन आवर बिग क्वेश्चन मार्क, फिर आपने हमें क्यों बुलाया. उन्होंने कहा जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और हम क्या कर सकते हैं, टेल अस दैट. अच्छा, अब आ जाती है बात कि जी वंस द मशीन्स आर डूइंग वेल, आप मशीन को नहीं कह सकते कि जी यू इम्प्रूव मच बेटर. ठीक है, सो यू टॉक टू पीपल, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, हमने कहा जी एक लास्ट पॉइंट आ जाता है जहां पे आपने सारी वो जैसे कहते हैं कंप्लायंस कर ली, लेकिन देयर इज सम इनवर्ड क्रिएटिविटी. ठीक है ना, मैं कहता हूँ आप कभी बैंक में जाते हैं, लाइन किसी में नहीं लगी हुई, 1 2 3 आपके पास ऑटो टेलर्स बैठे हुए हैं, वाई वुड यू कम टू मी नॉट टू अदर 2 जब ये मैं फ्री हूँ. मे बी ये डिस्टेंस कम है, मे बी यू आई एम स्माइलिंग, मे बी ये है कि जी यू हैव सीन कि जी जो कस्टमर उठ के गया ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज डीलिंग विद मी. मे बी आपको ये भी लगता है कि यार ये बंदा बहुत स्लो है, काम इतना स्लो कर रहा है, मुझे जल्दी जाना, तो मे बी आई एम फास्ट इनफ. दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स. अब ये प्रोसीजर्स तो मैं सारे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनल एबिलिटी है जिसकी वजह से यू आर एक्चुअली टेलिंग मी कि भी ये आपने चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें आपने करनी है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट हमने उनको एक ट्रेनिंग दी कि जी आप कस्टमर सर्विस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर्स को किस तरीके से एज एन इंडिविजुअल. ठीक है ना, ये नहीं कि वाई पीपल शुड कम टू मी रादर देन गोइंग टू हिम. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वे. वी गेव देम डिफरेंट टिप्स. आवर वर्क वाज डन एंड देन वी जस्ट लेफ्ट. आफ्टर 1 month वी गॉट एन ईमेल. उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा किया, एंड नाउ देयर इज अनदर, हम आपके साथ एक सक्सेस इंसिडेंट एक शेयर करना चाहते हैं.
we again went back and हमें पता चला there was a guy called Lewis over there. अब इसने लुइस ने क्या किया था कि उन्होंने कहा जी जब लाइन आती है कस्टमर्स की क्यू लगती है ऑब्वियसली इट्स अ चॉइस, तो वो जो होता है ना एक बंदा जो आपका चीज़ें पार्सल में डाल रहा होता है, तो पीपल, क्योंकि ये एक वो छोटा टाउन था वाटरफोर्ड का, तो पीपल प्रेफर गोइंग टू लुइस रादर देन अदर सेल्समैन जो होते हैं. अब हमने लुइस को पूछा, हमने कहा भाईजान व्हाट हैव यू डन, व्हाई पीपल आर कमिंग टू यू, एंड लुइस गेव अस अ वेरी गुड आंसर. उसने कहा जी आपने कहा था कि जी बाय द एंड ऑफ द डे इट्स यू, आपके पास क्यों आना चाहेंगे कस्टमर. तो मैं गया, मैंने कभी कस्टमर इस वजह से भी आता है, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप हमने डेवलप करनी होती है, ठीक है ना. रिलेशनशिप इस तरह भी डेवलप हो जाती है, फॉर एग्जांपल आई वुड गो फॉर अ वॉक और देयर वाज अ पर्सन हुम आई वुड बी टॉकिंग टू, और एकदम उसके साथ मेरी गपशप हो गई. गपशप क्या हुआ करती थी, सुबह गुजरते हुए इस तरह हम क्रॉस करते थे, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम, एंड बेसिकली ही वाज अ सिख, और हमारी इतनी गपशप होगी कि जी हमने नॉट अ सिंगल अदर वर्ड, इट वाज जस्ट पासिंग द ग्रीटिंग्स, क्योंकि ही वाज अ सरदार जी एंड आई वाज अ पंजाबी पाकिस्तानी, सो आई वुड जस्ट से कि जी अस्सलाम वालेकुम सरदार जी, एंड अल्टीमेटली ये हुआ कि जी आई वाज, आई थिंक आई वाज इन हफ्ते 2 हफ्ते का मेरा गैप पड़ गया, आई वॉज नॉट इन ऑफिस, मैं दूसरे स्टेट गया हुआ था, एंड वंस आई केम बैक तो he actually stopped me. He said, beta, what happened? I never saw you for 2 weeks. And I'm like, okay. So you make a mark कि जब आप उसको, he expects कि जी वो बंदा आएगा इस टाइम पे मुझे सलाम करेगा and we will just go. So that's basically an improvement in the relationship. कि कस्टमर आता है और कस्टमर कहता है मैंने सामान उसी से लेना. अच्छा, अब वही लुइस की स्टोरी. What happened with Lewis was कि we asked him what he did. Lewis कहता जी मैं गया घर and I bought some colored papers मैंने लिए, और मुझे वो ये आइडिया आया चाइनीज़ फॉर्चून कुकीज़ के साथ. चाइनीज़ फॉर्चून कुकीज़ अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं यहाँ पे, तो आई डाउट कि यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मीन्स लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में मेरा ज़्यादा एक्सपोजर है इन सिटीज़ में, लेकिन अगर आप यूएस में जाते हैं तो आपको खाने के साथ आपको फॉर्चून कुकीज़ मिलती हैं. फॉर्चून कुकीज़ पर आप कुकी खाते हैं और उसके जब तोड़ते हैं तो अंदर आपका एक नोट लिखा होता है. तो उसने कहा जी मुझे उससे आइडिया है, और मैंने क्या किया, मैंने इन कलर्ड पेपर्स के ऊपर थॉट ऑफ द डे लिखना शुरू कर दी, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिलती थी मैं उसको लिखता था, और जब मैं सामान पैक करता हूँ तो मैं वो लोगों के शॉपर में डाल दिया करता था. एंड पीपल लाइक दैट जेस्चर एंड पीपल लव्ड इट. और अब लोग सारे मेरी साइड पे आ जाते हैं क्योंकि उनको होता है कि जी हमें लुइस से आज मिलेगी थॉट ऑफ द डे, और वो दे एंजॉय दोज थिंग्स. नाउ दैट वाज अ वेरी स्मॉल जेस्चर, लेकिन वो जो हमें शुरू में एक लग रहा था कि यार इन्होंने दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, द स्टाफ इज़ वेरी गुड एंड एवरीथिंग एंड वी नीड टू डू समथिंग. तो हुआ ये है कि जी नाउ पीपल आर एक्चुअली डीलिंग, people are actually waiting for to come in Lewis line, क्योंकि वहाँ पे उनको क्या मिलता था, thought of the day मिलता था. So it's basically a continuous process. That's what Deming has been talking about. Then Deming का ये क्या है, PDCA cycle एक इसने बताया, वो आगे मैं बताता हूँ. और अगर आपने further on if you want to study about Deming तो आप ये quality circle पढ़ सकते हैं. This is deming.org. Let me show, अगर मेरे पे Deming की फोटो है, and here he comes. This is एडवर्ड डेमिंग. एंड मैं तस्वीरों को इस वजह से कहता हूँ, फॉर एग्जांपल जब आप उनकी लोगों की बातें पढ़ते हैं और जब आप उनके बारे में ना एक इम्प्रेशन, फेशियल इम्प्रेशन एक बना देते हैं. समटाइम्स दैट इज़ गुड, समटाइम्स दैट इज़ बैड. And again, a personal experience is that आप रेडियो डेली सुनते हैं, 24 आवर्स आप सुन रहे होते हैं, जब आप गाड़ी में होते हैं, घर में, यहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप रेडियो. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द ट्रेंड जो 2001 के से स्टार्ट हुआ, FM के साथ स्टार्ट हुआ. FM 100 आया, 101 आया, एंड इट कंटिन्यूज. एंड बिलीव मी, पीपल स्पेंड, अब तो इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, लेकिन पीपल स्पेंड मोर टाइम विद दीज रेडियो जॉकीज एज कम्पेयर टू दैम. एंड दे हैव just while listening to their voices, they have actually painted their pictures in their mind कि जी ये बंदा अगर ऐसे बोल रहा है या हंस रहा है तो इसकी कुछ ऐसी इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी. एंड आई हैव जो मेरा, क्योंकि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर काम था, तो आई फील कि जी
once you see the face or once you haven't seen the face or you're just looking at one sense, आप उसकी speech सुन रहे हैं तो आपको एक assumption एक हो जाती है and maybe you like it, you don't like it. तो ये जो faces होते हैं लोगों के अगर ये दिखाए जाएं तो that actually helps you कि भी बंदा कैसा था, क्योंकि otherwise वो curiosity आपकी हमेशा रहती है. So this is Mr. Deming और ये Deming की एक book थी Out of Crisis. It's a really good book if you get a chance. So Deming ने ये PDCA साइकिल बनाया. P का मतलब होता है प्लान. आपने सबसे पहले प्लान किया और आप प्लान क्या करें, प्लान अ चेंज एम्ड एट इम्प्रूवमेंट. उसके बाद फिर आप कहाँ पे जाते हैं, आप डू पे आ जाते हैं. डू में आप क्या कर रहे हैं, यू एग्जीक्यूट द चेंज. उसके बाद सी में आप कहते हैं चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, स्टडी द रिजल्ट्स दैट हैज़ इट वर्कड और नॉट. और फिर ए से आप क्या कर देते हैं, एक्ट कर देते हैं. इफ इट हैज़ वर्कड उसको क्या कर देते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं. दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज और abandon or do it again. So that is basically PDCA साइकिल आपका बन जाता. अब डेमिंग क्या कहता है कि जी आपकी प्रॉब्लम्स जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहता है मोस्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय पुअर सिस्टम्स. वो कहता है आपका सिस्टम ठीक नहीं है. इसीलिए अगर आप डेमिंग के सारे 14 प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे आपको ये लगेगा ही इज़ एक्चुअली यूजिंग द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल्स, क्योंकि वो सिस्टम को ज़्यादा ब्लेम करता है. वो कहता है इट्स नॉट बाय द वर्कर्स. डेमिंग कहता है जी 90% ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द मैनेजमेंट, इसलिए उसने 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए. और जेडी पावर कहता है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लॉन्ग टर्म quality problems are in autos are engineering and design problems. So therefore you need to use some quantitative methodologies. Next आपके आते हैं that is Dr. Juran, Joseph Juran, JJ. और जुरान ने क्या दी, he gave the quality trilogy. जुरान की जब when I started was doing my MBA, उस ज़माने में हमने पढ़ी थी जुरान की ये जो क्वालिटी हैंडबुक. और जुरान ने ये क्वालिटी ट्रिलॉजी दी और इस ट्रिलॉजी के अंदर क्या वो कहता है, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट. प्लानिंग, कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट. और उसका बेसिक एम्फेसिस क्या था कि जी मैनेजमेंट के. जुरान की बड़ी मज़ेदार एक फ़िलासफ़ी है, वो कहता है हाउ ही डिफाइंस क्वालिटी. इट्स बेसिकली से व्हाट यू डू व्हाट यू से. और उसने एक क्वालिटी हैंडबुक दी और ये इसकी वेबसाइट है. अगर आपने जुरान की वेबसाइट जाना है यू विल फाइंड रियली इंटरेस्टिंग मटीरियल, दैट इज़ juran.com. अब जुरान की ट्रिलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी उसने 3 बातें की. आपकी परफॉर्मेंस के उसने देखा हुआ है, गुड रखा हुआ और बैड रखा हुआ है. कुछ आपका क्रॉनिक वेस्ट होता है, कुछ आपका एकदम ब्रेक थ्रू में आ जाता है. एंड देन यू जस्ट डेवलप दीज जोन्स. और जैसे ही आप क्वालिटी की तरफ जाते हैं, जैसे ही बुरा होता है आप अगेन प्लान करते हैं, फिर से उस प्रोसीजर को ठीक करते हैं. देन अगेन यू मूव ऑन टू इम्प्रूविंग योर नेक्स्ट. और अगर वो अच्छा है तो देन यू एक्ट अपॉन इट. लास्ट आपका आता है दैट इज बेसिकली फिलिप क्रॉस्बी. क्रॉस्बी ने क्या किया, दैट फिलिप क्रॉस्बी ने 14 पॉइंट्स दिए एंड दीज 14 पॉइंट्स आर बेसिकली ऑन द क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. एंड दिस इज द पिक्चर. और इसने जो बुक लिखी थी एंड ही सेड दैट क्वालिटी इज फ्री. अब व्हाट ही टॉक्ड अबाउट क्वालिटी इज़ कि जी आपने प्रोडक्ट को इतना आपने क्वालिटी की तरफ लेके जाना कि प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, ज़ीरो डिफेक्ट होना चाहिए, यानी उसके अंदर डिफेक्ट से बिल्कुल फ्री हो. एंड हिज एम्फसिस इज़ ऑन परफॉर्मेंस एंड हिज एम्फसिस ऑन कन्फॉर्म. आप करें कन्फॉर्मेंस इन द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी. और वो एक बड़ी मज़ेदार बात कहता है, वो कहता है जी क्वालिटी इज़ फ्री. क्वालिटी इज़ फ्री, एनी वन कैन हैव इट अगर वो करना चाहे. और ये है philipcrosby.com, इसकी ये वेबसाइट है. अगर आपको तीनों शक्लों में से जो भी अच्छी लगी है यू कैन एक्चुअली विजिट देम, यू कैन लुक इनटू कि जी आप किसके नोशंस को आप अप्लाई करना चाहते हैं. सो दे ऑल कम इनटू द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. अब फिलिप क्रॉस्बी ने ये क्या कहा कि जी बेसिकली जब आप क्वालिटी को देखना चाहते हैं तो क्वालिटी के साथ ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट्स एसोसिएट होती हैं. जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है और आप क्वालिटी को कहते हैं ना, क्वालिटी इज़ फ्री, क्वालिटी इज़ वायरल, क्वालिटी को हमने अप्रूव करना है, और अगर आप इसमें देर करते जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. लेकिन अगर आप जल्दी अपने प्रोसीजर्स के अंदर, स्टेप्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर क्वालिटी को अगर आप ले आते हैं तो दैट इज़ बेसिकली कि आपने जल्दी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी. सो व्हाट ही टॉक्स अबाउट कि जी सबसे पहले आपकी क्या आ जाता है, प्रिवेंशन. डिटेक्शन टाइम में अगर जितनी जल्दी आपको पता है तो आप उस कॉस्ट को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं. फिर आपका आ जाता है
देन कम्स योर सब सिस्टम, फिर आपकी फाइनल इंस्पेक्शन होती है, फिर आपका शिपिंग पॉइंट पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर फील्ड में रिपेयर पे, फील्ड में फेलियर भी हो सकता है, एंड द लास्ट वन कम्स एज लिटिगेशन। टोयोटा को अगर आप देख लें, टोयोटा फील्ड रिकॉल्स कर लेती है कि जी अभी फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स अगर आप देखेंगे टोयोटा का जब भी आता है नया एडिशन मॉडल आता है वो गाड़ी फील्ड में चली जाती है, लोग यूज़ कर रहे हैं, जब उनको प्रॉब्लम जैसे ही पता चलता है तो वो कहते हैं यार रिकॉल कर लो, काइंडली कम रिटर्न योर टोयोटा कार्स, और फिर हम आपको रिप्लेस कर देते हैं। इसकी कॉस्ट ज़्यादा है अगर वो शुरू में ही डूइंग इट राइट एट द फर्स्ट टाइम अगर कर लेते, ठीक है। और अगर आपका कोई बंदा उससे मर गया है देन द लिटिगेशन कम्स, और उस क्वालिटी को करने के लिए आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके लग जाएंगे। अब आपकी क्वालिटी एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर आपकी 2-3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स, देन कम्स योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आपका स्क्रैप है, रीवर्क है, रीसेट, डाउन टाइम, उसके बाद यील्ड लॉसेस, डिस्पोजिशन। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स हैं वो आपकी आ जाती हैं कंप्लेंट एडजस्टमेंट, रिटर्न मटीरियल, वारंटी चार्जेस, अलाउंसेस। अप्रेजल कॉस्ट क्या आ जाती है आपका इनकमिंग मटीरियल, ठीक है। उसके बाद आपकी मटीरियल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, उसके बाद आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट आ जाती है। प्रिवेंशन कॉस्ट सबसे कम होती हैं। सो क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम किस तरह लिंक अप करते हैं, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे जी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन अगर बहुत अच्छा है तो उसकी परसीव्ड वैल्यू बहुत अच्छी होगी और उससे आपका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा। टोयोटा ने अपना नया मॉडल लेके आया गालबन 2014 के अंदर, इट वाज जस्ट अ हाइप कि जी टोयोटा इज़ कमिंग विद द न्यू मॉडल, तो उससे क्या होता है मार्केट शेयर आपका इंक्रीज़ हो रहा था, इससे आपकी प्राइसेस हायर हो जाती हैं, प्राइसेस हायर हो तो आपका रेवेन्यू हायर होगा, रेवेन्यू हायर होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी। अगर आपकी क्वालिटी के साथ आपने कन्फॉर्मेंस ज़्यादा रखी हुई है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, लो हो जाती है, ठीक है, और दैट ऑल्सो इंक्रीजेज इन योर प्रॉफिट। अब आ जाता है क्वालिटी के अंदर एक और डायमेंशन आती है, दैट इज बेसिकली योर ISO 9000 एंड द मेजर मिसकंसेप्शन इज कि जी ISO 9000 को हम कहते हैं कि जी देयर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट बिलीव मी दैट इज रॉन्ग। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, 9000 है, 14000 है, उसके बाद 15000 एनर्जी के आ जाते हैं, और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसलिए बने हुए हैं दैट इज बेसिकली फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ISO का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो स्टोरी चलती है, दैट इज बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आता है, और ये आर्मी वगैरह ने कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि आप मिसाइल्स वगैरह ये सारे बना रहे होते थे और एक फैक्ट्री नहीं बना रही थी, डिफरेंट फैक्ट्रीज बना रही थी, तो हमने स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर डिफाइन करना था, एंड वंस यू डिफाइन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फिर सारे एक किस्म का बॉम्ब बनाते थे। So therefore the ISO system came. It's based in headquartered over there in Geneva, Switzerland के अंदर ही है, and ISO gives different kinds of guidelines. वही वाली जो जुरान कहता था, say what you do and do what you say, basically documentation हो रही होती है आपके process की। So ISO 9000 is a system of conformance. आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं कोई ISO तो आपको पहला नजर आता है जी हमारी क्वालिटी स्टेटमेंट है कि हम इसको कंफर्म करते हैं। So it is basically the guideline for designing, manufacturing, selling and servicing product. Yani it's not just about manufacturing, it's about services also. Then selecting an ISO 9000 certified supplier provides some assurance that suppliers follows accepted business practices in the areas covered by standard. जब एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि जी इट्स ISO 9000 सर्टिफाइड, तो आपको थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भी द प्रोडक्ट इज ISO सर्टिफाइड। और लास्ट आपका जो सेकंड अवार्ड होता है, ये तो प्रोडक्ट सर्विस, उसको हम कहते हैं बैलरिज अवार्ड्स, जो कि आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज बेसिकली द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। अब बैलरिज जो क्राइटेरिया है, बैलरिज क्राइटेरिया आपका ये 7 है, उसके वो जो एरियाज़ हैं। अब 7 एरियाज़ में 7 कैटेगरीज कह लें, 7 कैटेगरीज के अंदर आपकी लीडरशिप आ जाती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाती है, कस्टमर एंड मार्केट फोकस आ जाता है, मार्केट एनालिसिस, नॉलेज मैनेजमेंट, वर्कफोर्स फोकस, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड रिजल्ट्स। और बैलरिज अवार्ड्स एक आपका हाइट नहीं है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, आई थिंक हाइट है, नहीं, I'll tell you, अगले लेक्चर्स में मेरे ज़हन में आ जाएगा। बट बेसिकली उनका जो रेजेंसी वाले क्या करते हैं दैट उनका जो बेल बॉय है, अब बेल बॉय वो होता है जो बंदा आप जब गाड़ी आप होटल में लेके जाते हैं तो जो सामान आपका अंदर लेके जाते हैं
उन्होंने बेल बॉय की जेब में आई थिंक 4,000 के $5,000 रखे हुए हैं कि अगर आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो यू हैव दिस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कि आप उसी वक्त उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें. एंड दिस होटल इज गेटिंग दिस मैल्कम बैलरिज अवार्ड फॉर द पास्ट 4 years. इतना वो सर्विस का देखते हैं. एक और इसका स्टोरी बड़ी मशहूर है कि जी द मेड, ये जो आपका कमरा बनाने आती है, शी हर्ड वन पर्सन टॉकिंग टू हिज वाइफ कि जी यार आई टोटली फॉरगॉट टू ब्रिंग माई शूज, जो मैं जूते अपने घर भूल आया हूँ फॉर द मीटिंग. And can you believe it? In the morning, when the guy was actually dressing up for the meeting, होटल वालों ने, रेजेंसी वालों ने क्या किया, उसके लिए नए जूते वहाँ पे रख दिए कि जी आप जूते, हमने सुना था कि आप यू फॉरगॉट योर शूज़, तो दे हैव ब्रॉट द न्यू शूज़. अगर कोई कस्टमर कहता है कि जी आपने मेरा लगेज ख़राब कर दिया, ये तो इस पर निशान पड़ गया, दे विल गिव यू द कंपनसेशन राइट एट दैट पॉइंट. इतना वो कस्टमर सर्विस को टॉप पे रखते हैं. दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द मैल्कम बैलरिज अवार्ड. नेक्स्ट आपका आ जाता है ISO 14000. ISO 14000 जब हम 9000 की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली विद रेफरेंस टू योर प्रोडक्ट, विद रेफरेंस टू योर सर्विस. लेकिन बाद में चेंज क्या आता है कि पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि भी आप इन्वायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर करते हो. आई डोंट वॉन्ट टू हैव दैट प्रोडक्ट विच इज़ डूइंग रियली वेल, जो प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी का है, लेकिन मैं तो ये भी सोचना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट आप मुझे सप्लाई कर रहे हैं उसने इन्वायरमेंट को इतना हर्ट नहीं किया. तो EMS, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स का डिफाइन हो गया, एंड दैट इज़ बेसिकली ISO 14000. और 14000 क्या करता है? दीज आर सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स कवरिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, environmental auditing, evaluation of environmental performance, environmental labeling and life cycle assessment. ये सारा इसके अंदर आपका आ जाता है. and basically जो objective ये है कि it is basically intent is to help organizations improve their environmental performance through documentation control, operational control of records, training, statistical techniques and corrective and preventive actions. ये अब जब सारे काम आप करते हैं, so what we are looking into ISO 14000. अब ISO 14000 के अलावा भी there are number of standards which are actually taking you towards the क्वालिटी एनहांसमेंट. अब क्वालिटी एनहांसमेंट में आपका एक आ जाता है SA 8000, सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000. अब वो बेसिकली करता है कि वहाँ पे आपकी जो बिजनेस के जो सिस्टम्स हैं, हाउ यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग दो सिस्टम्स, और एम्प्लॉयज़ को कितना वो सोशली दे आर एक्चुअली अवेयर आउट ऑफ दैट. जो हमारा कंक्लूडिंग पार्ट आता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वो तो मैंने क्वालिटी को ब्रेकअप करके किया कि जी क्वालिटी में कौन कौन से लोग थे. लेट्स टॉक अबाउट TQM. Total quality management is one of the earliest management fashions. Its peak of popularity in late 1980s and in early 1990s. It is basically, अगर हम इसको देखें, define करें, तो it is basically an effective system of integrating the quality development, quality governance, quality management, and various groups in an organization as to enable production and service at the most economical levels, which allow for full कस्टमर सैटिस्फाई. यानी ये जो इनिशिएटिव्स दे रहे हैं, इससे कस्टमर आपका क्या हो जाता है, फुली सेटिस्फाई हो जाता है. What are basically the elements in total quality management? Meeting the needs and expectations of the customer, covering all parts of the organization. It's not by parts, इसीलिए हम word use करते हैं total का. Including every person in the organization, examining all costs which are related to quality, especially the failure costs. Getting things right फर्स्ट टाइम, डिज़ाइनिंग इन क्वालिटी रादर देन इंस्पेक्टिंग इन. ये इंस्पेक्शन तो बाद में होगा ना कि आपकी डिविएशन, आप पहले ही ऐसा सिस्टम बना लें कि आपको यू आर डूइंग इट राइट एट द फर्स्ट टाइम. एंड डेवलपिंग systems and procedures that support the improvement. Historically, many TQM incentives have failed, at least they were not successful. Even TQM is not the label given to improvement initiatives. Many of the elements of TQM, such as continuous improvement, is now part of the business. तो आप improvement तो continuously कर रहे होते हैं, तो ये कोई separate initiative नहीं है. Then excessive quality bureaucracy associated with the TQM, in particular, the continued use of standards and procedures encourages management by manual. तो creativity आपकी खत्म हो जाती है. And over systemized decision making and expensive, which is time consuming. Then comes, it is too
फॉर्मूलिक, यानी आप उस फॉर्मूले लगा रहे होते हैं जी इस टाइम क्वालिटी को करेंगे. Encouraging operations to substitute a recipe for a more customized and creative approach to manage operations. इसलिए हम कहते हैं कि TQM is part of the process. You cannot say that it is a substitute for the operations strategy. So आप lessons क्या learn करते हैं TQM से? The core concept of TQM of any issue is both powerful and attractive, which is very obvious. It provides a checklist of how to improve your operations. उसके बाद आपका European Foundation for Quality Model है EFQM. उसके बाद there are 5 enablers are concerned of how results are being achieved, while 4 results are concerned with what company has achieved and is achieving. ये आपके 5 enablers हैं. 1 2 3 4 5 6 और लीडरशिप, पीपल, पॉलिसी, पार्टनरशिप्स, प्रोसेस, पीपल रिजल्ट, कस्टमर रिजल्ट, सोसाइटी रिजल्ट और आपके की परफॉर्मेंस आ जाते हैं. कुछ आपके एनेबलर्स होते हैं और कुछ आपके रिजल्ट्स होते हैं. एनेबलर्स में आपके लीडरशिप, पीपल, पॉलिसी, पार्टनरशिप एंड प्रोसेस है और रिजल्ट्स में आपके 4 हैं, दैट इज पीपल, कस्टमर, सोसाइटी एंड की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स. How does TQM fit into the operation strategy? That I said that will be the concluding part. If one applied the operation strategy matrix to such an initiative, we expect to see spread of activities at intersections with each other in the decision areas. Many of the prescriptions stress that operation quality programs should be both strategic होने चाहिए और उनको comprehensive भी होना चाहिए. और इसके लिए operation strategy को हम किसके साथ connect करते हैं? अपनी Deming के 14 points के साथ. The first is development and organization. उसके बाद quality must be built on processes at every stage. C is mass inspection. उसके बाद do not make purchase decisions on price alone and identify problems and work continuously to improve the system. Implement statistical process controls, institute leadership, eliminate fear, break down the barriers and stop demanding high productivity without methods to achieve it. Eliminate performance standards based solely on output, remove barriers to pride in workmanship, institute education and self-improvement programs, which most of the organizations have done so far, and create a top management structure that emphasizes on the above 13 points every year, जो Deming के 14 points थे regularly. And in this way you would see कि जी आपकी क्या हो जाती है TQM का किस तरह operation strategy के अंदर role play होता है. ठीक है? That, ladies and gentlemen, conclude our lecture. कल हम कल means in the next lecture we will talk about the lean और बाकी business process re-engineering और Six Sigma की हम detailed discussions करेंगे. Till then, take care of yourself and have a nice day. See you in the next lecture. Allah Hafiz.